ओके, शुरू करते हैं। द पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस, लेसन 9.2, द रूट कॉज ऑफ वरी। तो इसने आज आपसे शुरू हाँ जी। करें। Fear and worry are mental plagues that have survived the test of time. They have robbed people of their peace of mind, ransacked them of their energy, and made themselves unwelcome squatters in the minds of many. All valiant attempts made to evict these mental leeches typically fall short of success, and most end up reluctantly accepting them as cohabitants of their minds. Okay, so Left to their after own devices. so Hmm. after each paragraph, we can pause for a while for a few seconds, and you can simplify it for the audience and readers, Hmm. those who do not understand English that well, or maybe some simplified manner with some your reflection or some inputs. मतलब let it be a reflective reading, a slow reading as well. Okay. So any thought on this? Anyone can add. Akriti ji can also add. So, जी. so most of the time, even for fear and worry, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा दिस इज आई मीन nobody can be free of fear and worry. मतलब लगता है कि ये तो होगा ही भाई। भाई हम हाँ। इफ वी आर लिविंग तो भाई लाइफ में फियर और वरी तो आएगा ही। ऐसा कैसे हो सकता है कि ना हम्म। हो, ऐसा हमें लगता है। हाँ जी। हम्म। Left to their own devices, they are poisons steadfast in their resolve to permeate every part of our lives, from our mind and body to the lives of those we touch each day, with devastating consequences. They cripple the will and paralyze awareness, slowing life to a grinding halt. But we need not acquiesce to them and live as their slave in mental squalor. There is a panacea to ameliorate such a state of mind and eventually free the mind from the shackles of fear and worry. मतलब अगर ऐसे ही छोड़ दिया हमने फियर और वरी को ये सोच के कि ये तो होता ही है, इट विल हैपन, तो देन इट इज लाइक अ स्लो पॉइजन which will grow in our lives, get into our lives, body, from our mind and body to even the people who we connect, who we are in touch with, who we touch each day, and it has a bad consequences. तो हमारी विल भी, इफ वी आर फियरिंग ऑफ समथिंग, तो हमारी विलिंग पावर भी कम हो जाती है कि अच्छा नहीं, हम शायद नहीं कर सकते, वी स्टार्ट डाउटिंग ऑल्सो. राइट। Mastery of awareness in the mind is the cure, the time tested elixir to end this tyranny, available to all who seek it, exclusive to none. But not all who seek it are determined to possess it. Thus, this cure unfortunately lies in the hands of a few determined souls. And these are the souls who courageously drive humanity forward. काफी अच्छा पैराग्राफ है। Hmm. So, the तो cure they have told. जो रॉबर्ट ग्रीन का मास्टरी वाला सुन रहे थे कल, उसके साथ भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। कौन सा? रॉबर्ट ग्रीन का मास्टरी वाला रॉबर्ट डायग्राम। ग्रीन का. यस. या उनकी यस. ओवरऑल बुक या जो भी उनकी फिलोसफी हाँ. है। हम्म. पावर. राइट। जी। Worry. We pulled into an empty spot in the parking lot of the coconut marketplace,
a quaint shopping and dining village located on the eastern shore of the island of Kauai. I was accompanying Gurdeva and a senior monk on an excursion. We stepped out of the van and onto the path that took us into the center. As we walked, Gurudeva turned to me and said, when you are in the conscious mind, you need to play by the conscious mind rules. Worry is one of the children of the conscious mind. When awareness is the conscious mind, the instinctive mind, you expose it to the experience of worry. If you spend much of your time in the conscious mind, it behooves you to be cognizant that the experience of worry is a possibility. I'll repeat this whole para actually. Worry is one of the children of the conscious mind. When awareness is in the conscious mind, the instinctive mind, you expose it to the experience of worry. If you spend much of your time in the conscious mind, it behooves you to be cognizant that the experience of worry is a possibility. The level of your mastery over awareness in the mind determines how much you subject yourself to worry. मे भी इनकी कुछ अपनी टर्मिनोलॉजी है, आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा. Okay. Though many people are more intimately familiar with worry than a cat is with napping, it's best that we define worry so that we can be on the same page about it. This will also help us to see how we can use what we have learned in this book to overcome it. Merriam-Webster's dictionary defines worry as mental distress or agitation resulting from concern, usually for something impending or anticipated. The Cambridge Dictionary gives a definition that is perhaps a little easier to digest. To think about problems or unpleasant things that might happen in a way that makes you feel unhappy and frightened. As for me, I'll define worry for you by telling you a story that my guru shared for his early life. It was 1934, the snow was falling heavily, and he was traveling home in a car with his family near Fallen Leaf Lake in Northern California. As the snow came down thick and heavy, he began to worry. What if we get stuck in the snow? What if we don't make it home in time? I'll miss my favorite radio show. He worried. Upon thinking this, he observed what was taking place in his mind. He saw his awareness leaving the present moment and traveling into the future. Upon its arrival in the future, it created a situation in his mind of the family car being stuck in the snow. Now that his visualization was created, now that this visualization was created, hi- his awareness returned to the present and he started to worry, to be mentally distressed and agitated about the situation he had created in his mind. मीन्स यहाँ से हमें क्लू ये मिला कि व्हाट इफ ये ये सॉन्ग प्ले होना शुरू हो जाता है हमारे माइंड में, नेगेटिव सॉन्ग. ऐसा हो गया Mm, तो, वैसा हो गया तो, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो ना हो mm, जाए. mm. And then इस तरह we are no longer in present, we go to future. हम्म, तो जैसे जैसे हम सभी पढ़ते जा आकृति जी रहे हैं. आपको पढ़ना है? हाँ हाँ जी. श्योर. आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग रिलेटेड टू दिस. तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि मतलब whenever we think what if something goes wrong, so we always think about what all bad things can happen. मतलब हम कभी ये नहीं सोचते कि कुछ अच्छा हो जाएगा इसमें से. कुछ भी कोई भी सिचुएशन आती है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि what if, अगर मतलब whatever we think is towards the negative side only. So I read somewhere that we can also think what if this good thing happens, instead of whenever our mind says what if this happens, what if that happens, we can also we Mm, can also start visualizing what all good things can happen. So for example, like the other alternative for his guru could be that he could have visualized what if we get home safely
and then we are all enjoying and playing with snow. So Hmm. that could have helped him relaxed. So, Hmm. तो इस ये भी एक समझने की बात हो सकती है कि ऐसा क्यों होता है कि पहला थॉट हमारे मन में नेगेटिव साइड वाला ही आता है, उसका क्या रीजन है? टेंडेंसी या नेगेटिविटी बायस के लिए, मतलब ये सिस्टर शिवानी के लेक्चर्स मोस्ट। में बहुत आती है ये बात कि इसका एक बहुत पर्टिकुलर रीजन है, बहुत स्पेसिफिक रीजन है इसका, और वो हमारे कंट्रोल में है। मतलब हम जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं मीडिया और एग्जैक्टली, उसकी न्यूज़पेपर, वजह से। बिल्कुल। तो सारा ही कंटेंट इस तरह का है कि ये हो गया, वो गलत, सब गड़बड़ हो गई। तो फिर पहला थॉट यही आता है कि हाँ, क्योंकि पैटर्न माइंड ने वो रिसीव कर लिया कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा शायद। हम्म। जैसे किसी ने आपको, कोई आपके पास गेस्ट आने वाले हैं, आपको टाइम दिया है उन्होंने और वो लेट हो गए 1 घंटा, तो पहला थॉट क्या है? क्या? कोई गेस्ट आपके घर पे आने वाले क्वेश्चन हैं, समझ में नहीं आया। किसी हाँ। ने, कोई गेस्ट आपके आने वाले हैं आपके विजिट करने के लिए, हम्म। और वो आने में 1 घंटा लेट हो गए और उनका फोन भी नहीं लग रहा है, तो पहला थॉट क्या आएगा कि वो लेट क्यों हो गए? गेस्ट का नहीं पता बट कोई क्लोज रिलेटिव, मतलब क्योंकि हम्म, गेस्ट का फोन भी उनका नहीं लग रहा है, तो मुझे मतलब मे बी आई डोंट नो कि दैट पर्सन हैज इवन स्टार्टेड फ्रॉम हिज प्लेस और नॉट, हम्म, बट समवन whom I know गाड़ी like, खराब हो गई कुछ भी। हाँ, हम्म। राइट। ओके, तो हमने इसलिए डिस्कस किया ताकि हम मतलब उस एक्सपीरियंस में आ जाएं कि हाँ, ये प्रैक्टिकली डे इन डे आउट होता ही रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आकृति जी, यू मे कंटिन्यू। हैविंग ऑब्जर्व्ड। Having observed all of this taking place in his mind, he asked himself, "We are not stuck in the snow yet, are we?" And he replied, "No." He then asked himself, are we still on time to get home for my show?" And he replied, "Yes." In a great moment of realization, at the mere age of 7, he cognized that he was all right now. He then affirmed to himself, "I am all right now." He realized that in the eternity of the moment, everything is okay, and that worry was future based. He had seen his awareness go into the future, create a situation that had not happened, and then return to the present and worry about it. And that, in summary, is what worry is. So किसी basically, किसी मूवी का कोई सीन या एग्जांपल याद आ रहा है किसी को, जब वरी होती है तो क्या बोलते हैं? एक सॉन्ग भी है इसके बारे में, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, 3 इडियट्स। मतलब वरी हो रही हाँ। है तो इन द इटर्निटी ऑफ मोमेंट एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो रहा है। और ये जो एक बात बताई जाती है कि जो भी हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही है, भला है, ये माइंड सेट जिन लोगों का होता है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो वरी कम करते हैं, वो ज़्यादा पॉजिटिव सोच पाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। this experience of his has provided me with the most clarifying insights into worry. Upon first hearing it, it instantaneously dissipated many of my own worries. I am unable to look at worry the same way again. I can see it for what it is: awareness uncontrolled, conjuring up stories in the future that cause distress in the present. So हम अपनी stories बना रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, and that causes stress in the present moment. If I ever observe awareness venturing into the future and beginning to create worrisome situations in my mind, I will rein it back to the present with my willpower and hold it in the present with my powers of concentration. That's the very same willpower that I have been developing over the years by finishing what I start, by doing a little more than I think I can, and a little better than I think I can.
The same willpower I develop each time I make the bed, or when I align my flip flops upon taking them off, or when I wash the dishes, or in the many non negotiable recurring events in my average day. तो इस पैराग्राफ में काफ़ी सारे टर्म्स ऐसे आए हैं जो अगर हमने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हैं तो ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएंगे। जैसे उन्होंने विल पावर को डेवलप करने के लिए बात कही एंड मेकिंग द बेड की बात हुई, ये सारे एग्जांपल पहले डिस्कस हुए हैं। नॉन नेगोशिएबल और रिकरिंग इवेंट्स, इनकी भी बात हुई। तो अगर बहुत ज़्यादा किसी को नहीं भी समझ में आता फर्स्ट टाइम में तो इट इज़ ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। So basically, I think what the author is trying to say is that if we want to, improve on our willpower, we have to develop it, and that we can do by trying to, do small things like making the bed daily, or whatever you think basically that I want to do, and making effort to do those small things daily. इसको हम लोगों ने इस तरह से याद किया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो क्योंकि पूरा एक चैप्टर था इस बारे में, FMB फॉर्मूला, फिनिशिंग व्हाट आई स्टार्ट, डूइंग अ लिटिल मोर देन आई थिंक आई कैन एंड लिटिल बेटर देन आई थिंक आई कैन। तो FMB, फिनिशिंग मोर एंड बेटर। तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। इसको हम मार्क भी कर लेते हैं, फिनिशिंग मोर एंड बेटर। जी, वी कैन कंटिन्यू। The will that I have so devotedly committed to building each day can now be someone to prevent me from having the experience of worry. This alone is well worth developing your willpower for, though it is a fragment of what you can use your will for. I hope you can see how now the crucial application of willpower to maintain a worryless mind. So agar if we have willpower, then we can use it to finish our finish our worry by bringing our awareness to the present moment. And once I have reined awareness back to the present from the future worry it was about to create, I will hold it in the present with my powers of concentration. And once I have reined awareness back to the present from the future worry it was about to create, I will hold it in the present with my powers of concentration. These are the very same powers of concentration that I have been developing over the years by giving my spouse, daughter, and the people I engage with my undivided attention, and by doing one thing at a time. तो ऑथर ने प्रीवियसली ये भी बात पे फोकस किया कि जैसे जितने भी लोगों से आप दिन में बात करते हैं और ये नॉन नेगोशिएबल रिकरिंग इवेंट्स हैं, आप अपने डॉटर से, स्पाउस से, कोलीग से बात करते ही हैं, तो हम भी प्रैक्टिस करें कि हम अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हैं एंड बाय डूइंग वन थिंग एट ए टाइम। तो ये प्रैक्टिस उन्होंने इनिशियली बताई थी, तो इन्होंने फिर से रिवाइज कराया जी। The ability to focus that I have so faithfully committed to building each day can now be someone to hold awareness in the present, to prevent it from heading off into the future and creating uncalled for worrisome situations. तो जो हमने फोकस करने की एबिलिटी डेवलप की है, we can use that to hold our awareness in the present and to prevent it from heading into future and creating worry. Every time you worry, observe what is happening in your mind. Observe awareness leaving the present and venturing into the future. Observe it crafting stories, creating situations, fabricating outcomes, all distressing in nature, for you to worry about upon its return to the present moment. So जब भी हम वरी करेंगे तो we should try to observe our mind कि हम मतलब हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस को छोड़ के हम फ्यूचर में जाके
कुछ stories create कर रहे हैं और that is causing us stress. What you've learned in this book so far is a systematic approach to overcoming worry. First, understand that awareness and the mind are two distinctly separate things. Awareness and the mind are two separate things. Then know that awareness moves and the mind does not. Realize that willpower and concentration can be developed to harness and direct awareness within the mind. Now, if awareness goes into the future to create worrisome situations in your mind, use your willpower to rein it back to the present and use your powers of concentration to hold it in the present. This is the key to eliminating worry from your life. The future and the past. I am not saying that we should never allow our awareness to go into the future and create negative scenarios. Doing this can be helpful at times as it allows us to figure out solutions for potential problems that may arise. Imagine you are a restaurateur. You are almost done with designing your latest restaurant. To make sure you have covered all the bases, you allow your awareness to go to the future and create potential problems. In one scenario, your awareness is in the future in your mind, painting a picture of a bustling restaurant on a Friday night. In this visualization, you see a fire breaking out in the kitchen. You then stop your visualization and bring awareness back to the present. Interesting. So the author is saying that sometimes, thinking about the future scenarios can be helpful. क्योंकि हम, we can predict what all problems can come and we can try to tackle those problems beforehand. तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे आउटकम ओरिएंटेशन अगर हमारी फ्यूचर थिंकिंग में है तो वो हेल्पफुल है। जैसे हम स्पॉटलाइट प्रैक्टिस भी कहते हैं कि बार जैसे हम स्पॉटलाइट करते हैं कि कल 24 आवर्स पे हम क्या क्या करने वाले हैं, तो ये प्रैक्टिस बहुत हेल्प करता है टू डिजाइन अवर डे, टू सी अवर प्रायोरिटीज। लेकिन ये आउटकम ओरिएंटेशन इसमें है, जो कि वन ऑफ द पिलर्स ऑफ एनएलपी भी है। ओके, Anyone else would like to read from here? इसने जी, now the awareness is back in the present. Now that awareness is back in the present, you solve for this highly likely culinary mayhem. You consult experts and find the best solutions to ensure that if such an event were to occur, you have the best solutions in place. So, even though you allowed awareness to go into the future and create a problematic situation, you never allowed it to create distress in your mind. You achieved this by finding a solution to your problem. This is very different from awareness going back and forth into the future, re experiencing the problem without actually solving it. इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जैसे जीटीडी सिस्टम में ये बात हाईलाइट होती है कि कोई भी थॉट अगर फ्यूचर का है, बार बार आ रहा है और सेम थॉट आ रहा है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो वो वेस्ट है। लेकिन एक बार आया और आपने उसको पार्क कर दिया कहीं प्रॉपरली, तो वो फिर फ्रूटफुल है, वो अच्छी बात है। इसलिए वो कहते हैं कि जो भी फ्यूचर का थॉट है बस एक बार आना चाहिए। अगर व्हाट इफ भी है तो हाँ, व्हाट इफ आया, नोट कर लिया, उसका सॉल्यूशन अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उसे पार्क कर दिया थॉट को, हमने उसे एक्नॉलेज कर लिया कि ओके इट इज देयर। लेकिन बार बार आ रहा है, चाहे वो यही थॉट है कि नेगेटिव भी नहीं है लेकिन वो नॉर्मल है कि कल मुझे वहां जाना है, कल उसको फोन करना है, फोन करना है, फोन करना है, बार बार आ रहा है तो वेस्ट है। एक बार आया काफी है, वो फिर शेड्यूल हो जाना चाहिए या कुछ उसका प्रॉपरली। तो या इस तो तरह राइट मतलब डाउन या हम स्केड्यूल। कनेक्ट कर सकते हैं जी। हाँ हाँ। The past, on the other hand, is not where worry lives. You can't worry about anything that has happened in the past because it has already happened. There is absolutely nothing that you can do about it. But what you can worry about is the consequences of your past actions that may manifest in the future. Say you stole a fancy pen from a store.
A couple of days later, in conversation with a friend, you find out that the store had installed over a month ago a state of the art security system that includes well hidden cameras. This information disturbs you, rattling your awareness and sending it into the future, where it constructs a story of the owner reviewing the security footage and calling the police, resulting in you being arrested. Having created this story, awareness returns to the present and starts worrying about the possibility of this happening. ये बहुत अच्छा एग्जांपल दिया इन्होंने। Hmm. और लेट्स से ब्रीच इन अवर प्राइवेसी थिंग, है ना। बहुत सारी कम्युनिकेशन हमारी कई लोगों से होती है, बहुत क्रिटिकल कम्युनिकेशन होता है, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन Hmm. होता है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, वो सब लीक हो जाए। Hmm. Hmm. या हमें ऐसे पता चल जाए कि भाई व्हाट्सएप का सारा डेटा चला गया कहीं हमारा, या किसी ने Hmm. हमारा जीमेल हैक कर लिया, तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर सकती हैं, करती हैं। Hmm. तो उस तरीके से भी इस बात को सोचा जा सकता है। Hmm. तो जनरली वरी के लिए कह रहे हैं कि इट इज व्हेन इट टेक्स यू टू द फ्यूचर एंड व्हेन यू आर वरिंग अबाउट इट, दैट इज हाउ the worry comes. It's thinking about future, but past actions के लिए भी हो सकता है where you may think that something may manifest in future. कोई past actions के लिए not much इस later. इसमें एक कीवर्ड और हाईलाइट हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस। जब तक उसके कोई Consequences. कॉन्सिक्वेंस नहीं था तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और जैसे ही पता चला उसका कॉन्सिक्वेंस है, Right. या कोई भी पर्टिकुलर हमारी ईटिंग हैबिट है या कोई भी बात है, जब तक हम एज लॉन्ग एज वी आर डूइंग इट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं है। अचानक से हमने Hmm. कोई मेडिकल जर्नल में कुछ पढ़ा कि अगर आप ये चीज़ डेली खाते हैं, एज सिंपल एज दैट, कंज्यूमिंग हाई डोजेज ऑफ प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन भी आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। लेकिन आपने तो उल्टा ही सुन रखा था कि प्रोटीन जितना कंज्यूम करोगे उतना ये बोन्स के लिए अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। Hmm. Hmm. या फॉर दैट मैटर कैल्शियम है या जो भी है, Hmm. Hmm. या इवन विटामिन सी। तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस नजर आएंगे तो लगेगा अरे कहीं ये ना हो गया हो। तो सर्कमस्टेंशियल है हर True. चीज़। Not much later, awareness heads off again into the future in your mind to create another possible scenario, giving you an additional thing to worry about. This repeats itself. As each story is conjured up, each one distressing to some degree, awareness returns to the present and worries about it, wreaking havoc on your mind and immersing you in a world of perpetual worry. The past leaves nothing to worry about, but the future is where worry lives and thrives. ओके, ये टर्म भी बड़ा प्यारा है, परपेचुअल वरी। Perpetual. तो इसी से मुझे बार बार याद आ जाता है, शायद हम कल परसों भी डिस्कस कर रहे थे, कंपाउंडिंग इफेक्ट। हाँ, कल सौरभ भाई के साथ Hmm. डिस्कस हो रहा था। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की जब बातें मन में रखते हैं तो बहुत काफ़ी चीज़ें वो मतलब फॉल्स इनटू प्लेस प्रॉपरली। जैसे हम रीडिंग कर रहे हैं तो डेली हम भले ही थोड़ी थोड़ी रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन इन सब का कंपाउंडिंग इफेक्ट हो रहा है। कई बार वो विजिबल नहीं होगा, लेकिन Hmm. वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका रिजल्ट आएगा। और बैक ऑफ द माइंड अगर हमें पता रहता है तो वी विल फील मोर कॉन्ग्रुएंट व्हाट वी आर डूइंग विद। Hmm. जी, मैनिफेस्टिंग आवर Shall वरीज। I go ahead? हाँ जी, एनी वन ऑफ यू, और द फोर्थ वन इफ शी वांट्स टू रीड। ओके, राजीव रंजन जी। Akriti? ठीक है, आकृति जी, हंसने जी, आप ही कंटिन्यू कीजिए, कोई भी, एनी वन। Okay. Worry is awareness going into the future, creating a problem in our mind that has not happened, then returning to the present and being distressed about that problem. Now, if awareness were to repeatedly visit that exact problem in the mind, which essentially is the act of worry, then it would be strengthening that problem each time it visits it. This is because every time awareness goes to it, that is where energy is flowing and that problem in the mind is being strengthened. Everything manifests on the mental plane first.
before it manifests on the physical plane. In the case of a worry, if found it founds its origin in you, allowing awareness to travel to the future in your mind and create a problem. When awareness did that, it manifested it on the mental plane. Now, if you allow awareness to repeatedly visit that problem in the form of worry, repeatedly depositing energy into it, you are strengthening this problem in your mind. The more energy that is deposited into this pattern in your mind, the worry, the stronger it becomes. As this process repeats itself consistently over time, we begin to materialize that worry on the we begin to materialize that worry on the physical plane. Manifestation जो बोलते हैं. जी, तो इससे कोई और किसी और बुक का कोई कॉन्सेप्ट याद आ रहा है फर्स्ट लाइन से क्या? एवरीथिंग मैनिफेस्ट ऑन द मेंटल प्लेन फर्स्ट बिफोर इट मैनिफेस्ट ऑन द फिजिकल प्लेन. तो 7 हैबिट्स बुक में दिया हुआ है एक लॉ ऑफ टू क्रिएशंस. लॉ ऑफ टू क्रिएशंस, तो पहले जो उसका ब्लूप्रिंट है माइंड में आता है मेंटल प्लेन फर्स्ट, फिर बाद में उसमें फिजिकल प्लेन में आता है. I think begin with the end in mind chapter में था ना ये, second हाँ chapter. जी, यस यस. Shortly after leaving the monastery, I conducted my first workshop in New York City. In this workshop, I spoke about how things manifest on the mental plane first before they manifest on the physical plane. When the workshop concluded, a man came up to me and said that he did not believe we could manifest things with our mind. I asked him, "What is your occupation?" He replied, "I trade stocks on Wall Street." I said to him, "Would you be so kind as to conduct an experiment for me? I would like you to mentally visualize and feel that all your investments are failing and you're losing hundreds of thousands of dollars. And I would like you to do this exercise at least 7 times throughout the day for a week. Would you do it?" He looked at me, devoid devoid of any expression, and said, "No." Not much more needed to be said after that. Similarly, if awareness is allowed to repeatedly go to a worry, then we have begun the process of manifesting that worry on the physical plane. Whatever it is we invest in, consistently in our mind, be it positive or negative, will start to manifest in our life. Yeah, I think that's the end of the chapter. ओके, तो वरी की काफ़ी कहानियाँ हुई. So any other thoughts or any experiences? वरी के साथ एक मिलता जुलता टर्म है एंजाइटी, और एंजाइटी डिसऑर्डर भी है, मतलब क्लासिफाइड एज ए पर्टिकुलर साइकोटिक प्रॉब्लम. तो कोई अगर हमारे पास आता है और वो खुद कहता है या हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि दिस पर्सन इज वरिंग टू मच, तो क्या हमारे पास स्टेप हो सकते हैं उसको ट्रैंक्विलाइज करने के लिए या पैसिफाई करने के लिए? Can you repeat the question, Rahul? अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है हमारे आसपास या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आता है कि आई वरी टू मच या मेरे को बार बार ऐसे थॉट आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा ऐसा साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या होगा जो हम दे सकते हैं उसे बिफोर ही और शी विजिट्स साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट? आई थिंक मैं तो पर्सनली मैंने ये अप्लाई किया है व्हाट इफ वाला. जब भी मेरे माइंड में ऐसा बहुत कुछ आता है कि ये हो गया तो क्या होगा, ये होगा एंड आई एम वरिंग टू मच, तो मैं ये सोचती हूँ कि इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, एंड आई ट्राई टू विजुलाइज दैट एंड आई देन से कि ऐसा ही होगा. मतलब मैं ये क्यों सोचूं कि बुरा होगा, अच्छा होगा, मैं ये सोचती हूँ कि अच्छा होगा.
एंड फिर मतलब ऑब्वियसली 90% ऑफ द टाइम्स जो भी हम वरी करते हैं वो एक्चुअल में तो होता नहीं है. दैट इज ट्रू फॉर एवरीवन. तो मतलब आई थिंक दिस ऑल्सो रिलीव्स अ लॉट. एंड सेकेंडली यू कैन से कि वो वरी जो है वो फ्यूचर में है. इन द प्रेजेंट मोमेंट जो आप वरी करो फ्यूचर के किसी इवेंट के लिए कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में क्या वो सिचुएशन है, जस्ट ट्राई टू बी अवेयर कि अभी कोई प्रॉब्लम है क्या इस मोमेंट में. बी इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड या आई थिंक दीज टू थिंग्स. यस. और क्या हो सकता है उस न्यूज़ को, क्या लगता है? तो जैसे कुछ टाइम एक आई हैव अ फ्रेंड हु यूज्ड टू हैव अ वरी अबाउट सर्टेन थिंग. तो वो हमेशा वरी करती, नहीं नहीं ऐसा, अरे मैं क्या करूं. शी यूज्ड टू गेट रियली वर्कड अप, और वो मुझे कॉल करती थी. तो देन आई यूज्ड टू मेक हर रियलाइज कि अभी उसके पास क्या क्या चीजें हैं जो अच्छी हैं. आई यूज्ड टू ब्रिंग हर टू द थिंग्स दैट शी हैज अचीव्ड. तो और उसको वो कैसे अचीव किया है वो सब रियलाइज करने की, मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक ग्रेटिट्यूड भी, कि हाँ ये मिला है, और दैट ऑल्सो हैज समहाउ गॉट मैनिफेस्टेड थ्रू व्हाट शी वांटेड इन, मतलब बर्निंग डिजायर कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट, एंड दैट्स हाउ शी हैज अचीव्ड ऑल दैट. तो वो करके, एंड देन आई टू गिव एन एग्जाम्पल विच मैंने सिस्टर शिवानी से ही सुना था, कि अगर किसी ने फ्लाइट बुक की है और उनको जाना है आफ्टर 20 डेज बाद जाना है, और तब आप अभी अगर सोच रहे हो कि ये अगर फॉग रहेगा मेरी फ्लाइट, अरे मैं नहीं जा पाऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है. तो तो मैंने वही एग्जांपल दिया कि इट इज समथिंग लाइक आपका फ्यूचर में आपको फ्लाइट टिकट आपने बुक कर ली, बट यू कैन नॉट, यू आर नॉट द पायलट, एंड यू आर नॉट अ वेदर ये मॉनिटर कर नहीं सकते ना, आप चेंज कर सकते हो, होगा नहीं होगा उस पर डिपेंड करके आप ये 20 डेज एकदम वरी में स्पेंड करोगे. एंड देन यू माइट नॉट इवन प्रिपेयर फॉर दैट प्रेजेंटेशन वेल, एंड इट मे सो हैपन कि कुछ नहीं होगा, आप आराम से वहां पहुंच जाओगे. और अगर ऐसा हो भी गया कि फॉग रहा और आप नहीं कर मिस कर गए, फ्लाइट नहीं कर पाए, तो फिर से रीस्केड्यूल हो सकती है, एंड दैट इवेंट कैन स्टिल बी रीऑर्गेनाइज, बिकॉज एवरीबडी वुड बी अवेयर कि ये सिचुएशन, इट वॉज नॉट इन दैट पर्टिकुलर पर्सन हैंड. मतलब इट इज, इफ इट इज वो जो है ना, इफ इट इज आउट ऑफ योर हैंड, देन इट शुड बी आउट ऑफ योर माइंड ऑल्सो. वो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. जैसे एक फ्रेंड था मेरा, तो बहुत कूल रहता था वो, मतलब उसे किसी बात की वरी ही नहीं होती थी. तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग ऑल्सो ये टू अंडरस्टैंड कि उसके मन में क्या चल रहा है. तो मैंने पूछा कि तुम क्या सोचते हो ऐसे टाइम पे, क्या मन में तुम्हारे आता है? तो कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर ये हो गया तो सो व्हाट, क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा. कह रहे कि मैं अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी चीज़ को मानता ही नहीं हूँ वैसे. ठीक है, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो क्या हो जाएगा, सो व्हाट. तो कॉन्सिक्वेंसेज को हम यहाँ पे ट्रिवलाइज कर सकते हैं एज फार एज पॉसिबल, हम्म. ताकि वो अननेसेसरी जो मैग्निफिकेशन उसका हो गया है वो बैलेंस हो जाए. ऑल्दो वी आर नॉट सेइंग ट्रिवलाइज हम्म. मीनिंग कि हम उसको कंसिडर ही ना करें, बल्कि जो मैग्नीफाई हो गया है एटलीस्ट वो अपने बैलेंस में तो आ जाए. तो हम कह सकते हैं सो व्हाट. दूसरा, जैसे आकृति जी ने बताया, बहुत अच्छा था पहले वो थॉट, कि हम ये कह सकते हैं कि आपको जो 100 थॉट ऐसे आते हैं नेगेटिव वाले, व्हाट इफ व्हाट इफ व्हाट इफ, उसमें से कितने सच में रियलिटी में कन्वर्ट हुए हैं? समटाइम्स तो हम्म. हार्डली एनी. कभी वो नेगेटिव ऐसा हुआ ही नहीं है, तो उसका कोई एविडेंस क्राइटेरिया ही नहीं है. तो फीलिंग इज नॉट ए फैक्ट. तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं इनफैक्ट है. इससे कनेक्ट करो तो, जी. इससे कनेक्टेड एक है, व्हेन आई वाज आई थिंक इन स्कूल. तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं हाउ आई हैड पिक्ड अप दिस थिंग कि अगर मैं सारी पॉसिबिलिटीज सोच लूं तो वो होगी ही नहीं. सो आई यूज्ड टू थिंक ऑल द वर्स्ट पॉसिबिलिटीज, हर एंगल से सब कुछ, एंड देन आई वुड बी रियलाइज अच्छा ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो सोच ही लिया. सो एंड इट नेवर यूज्ड टू हैपन आल्सो. राइट. और एक तरीका इसमें ये भी हो सकता है कि अपना सब कुछ है ना, स्टेक पर एक ही जगह नहीं होना चाहिए. इन एनीथिंग, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इवन इन इमोशनल टर्म्स, रिलेशनशिप वाइज और एवरीथिंग.
जब एक ही जगह स्टेक पर चीज होती है, जब वो फ्लक्चुएट होती है, तो हमें लगता है सब कुछ गया। अब एक जगह कुछ है ही नहीं है, तो कहाँ से क्या क्या जाएगा, जाने दो। तो मतलब इसको कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट काइंड ऑफ थिंग, नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट एवरीथिंग। मतलब से हम अपनी बैकअप पॉलिसी भी कह सकते हैं। एक इसका बिल्कुल कॉन्ट्ररी थॉट भी है कि आप मतलब मतलब आप ये इमेजिन करो कि वर्स्ट क्या हो सकता है इस सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन में ये इमेजिन करो कि बुरे से बुरा क्या होगा, एंड उसको भी आप देखो कि उसको भी आप ट्रिवियलाइज कर दो कि ठीक है, अगर बुरे से बुरा ये भी हो जाता है, आई कैन डील विद दैट ऑल्सो। तो फिर मतलब, तो ये भी एक थॉट, हम्म हाँ, ये भी बिल्कुल एक अप्रोच बिल्कुल। हो सकता है। ये भी एक फ्रेमवर्क है कि वर्स्ट। पर ये खुद के लिए कर सकते हैं, हम्म खुद के लिए तो कर सकते हैं, बट जो सामने वाला है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मैग्नीफाइड रहता है, उसको आप ट्रिविलाइज कैसे करोगे? क्योंकि दैट पर्सन, फॉर दैट पर्सन नहीं, ये होना ही है, ये चीज अगर नहीं हो पाई, अगर इसका ऑपोजिट हो रहा है, तो फॉर देम इट इज, तो वो वरी को कैसे स्टॉप मतलब यू कैन एक्सेप्ट वी व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट ऑल दिस ट्रिविलाइजेशन, बट हाउ टू मेक दैट पर्सन ट्रिविलाइज दैट, जिस जो उन्होंने मैग्नीफाई किया हुआ है। एग्जाम्पल लेट्स से कि कुछ ऑफिस में आपने ऐसा कुछ करना था, आपने नहीं करा, एंड आप उसका बहुत सोच रहे हो कि क्या इम्प्रेशन पड़ेगा और लोग क्या सोचेंगे, या फिर मतलब इस पे कुछ मेरे अप्रेजल पे तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, दिस एंड दैट, और बहुत आपके थॉट्स चल रहे कि, तो यू कैन से कि अरे यार, वर्स्ट केस में क्या होगा, जॉब से निकाल देंगे तुम्हें, तुम तो क्या होगा, दूसरी ढूंढ लेना। तो मतलब उस इस हम्म तरह से भी अगर आप सोच, मतलब दूसरे किसी को भी बोल सकते हैं, अरे वर्स्ट केस में क्या होगा, यू विल गेट फायर्ड, यू विल गेट हम्म लेड ऑफ, तो यू कैन अगेन फाइंड अनदर जॉब। मतलब दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल, बट समटाइम्स जैसे कि अगर आप उल्टा बिल्कुल एक्सट्रीम भी सोच लो कि इसमें क्या हो सकता है वर्स्ट, दैट ऑल्सो हेल्प्स कि ठीक है, मतलब बुरे से बुरा तो यही होगा ना, वी विल डील विद इट। इसमें हम कुछ एनएलपी के इनपुट्स या टेक्निक्स भी अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि एक तो रीफ्रेमिंग यूज कर सकते हैं हम। पर्सन जो भी कह रहा ओके है, एक्चुअली वो उस सिचुएशन में इतना है, टू मच इन्वॉल्व है, कि वो उसका कोई और साइड नहीं देख पा हम्म रहा। तो हम रीफ्रेमिंग कर सकते हैं। जैसे आकृति जी ने बोला कि जॉब से निकाल देंगे, तो आई वुड रादर से इट्स एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज। हम्म। हम्म और ये अच्छा है, निकाल दे तो इससे अच्छा और क्या होगा भाई। उससे हम निकलना चाह रहे थे पर निकल पा नहीं रहे थे। हाँ, करेक्ट। तो क्या मेनी कहते टाइम्स हैं। वी हैव सीन कि हम्म, मतलब जो हमें उस टाइम पे जो सिचुएशन हमें लग रहा था कि हम मतलब बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, अगर हाइंडसाइट में देखते हैं तो हमें लगता है कि मतलब ये हुआ तो बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, इससे हमें और हम एब्सोल्युटली। बेटर जगह पे आ गए। तो इवन इन स्पिरिचुअलिटी, बहुत डीप एडवांस लेवल की स्पिरिचुअलिटी है, और जो भक्ति सेंट्स हमारे हुए हैं, उन्होंने इस बात को इस तरह से कहा है कि भला हुआ मुरी माला टूटी, राम भजन से छूटी रहे। मतलब हाउ डीप इज दैट थॉट। मतलब कोई तो कहेगा ये अपशकुन हो गया, वो तो कह रहे हैं भला हुआ मुरी माला हम्म टूटी, राम भजन से छूटी रहे। मतलब इस ट्रैप में भी जो थे राम भजन में लगे हुए थे, इससे भी छूट गए। मतलब हम्म नेक्स्ट लेवल का उनका कम्युनियन हो गया विद द सुप्रीम। हम्म एक और एनएलपी का इसमें अप्रोच ये हो सकता है कि ऐसे टाइम पर लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन है थोड़ा सा ये, इनसाइड आउट अप्रोच शायद उतनी काम ना करे जितनी आउटसाइड इन अप्रोच काम कर सकती है। तो ऐसे पर्सन को हमें कहना चाहिए कि आप थोड़ा सा ना अपना माहौल वैसे चेंज करो, थोड़े ऐसे लोगों के संग रहो जो बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव है। मतलब थोड़ा सा अपना हम्म इकोसिस्टम चेंज करना पड़ेगा, चाहे दिन में 1 या 2 घंटे 3 घंटे ऐसी जगह जाके बैठो, कुछ भी मतलब चाहे खेलो, चाहे कुछ लोगों के संग रहो, कुछ अपना हम्म चेंज करो। लेकिन अदरवाइज यू विल बी इन योर कंपनी एंड नाउ योर कंपनी इज द बैड कंपनी। हम्म You are ruminating those thoughts continuously, so better to go somewhere else, फील गुड हम्म फैक्टर जहाँ पे हो। भले कुछ भी करो, आउटिंग करो, कुछ भी करो, तो वो चेंज हो जाता है। तो आउटसाइड इन से वो थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, फिर उसे लॉन्ग टर्म पे काम कर सकते हैं। तो मतलब एक पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। हम सिर्फ वो नहीं कर सकते जो हमें लगता है कि ठीक है। हमें देखना पड़ेगा कि ये क्लाइंट सेंट्रिक है कि नहीं, ये किस तरह का क्लाइंट है या पर्सन है।
तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं। मतलब हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब बाय डिफॉल्ट इस प्रोफेशन में हैं कि हमें साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड लोगों को देनी पड़ेगी, कभी ना कभी देनी पड़ती है, और एट टाइम्स अपने आप को भी देनी पड़ती है। तो कैसे हम उसकी एप्लीकेशन वाले पार्ट को हमेशा सोचते रहे। वेलकम सौरभ जी। वी हैव जस्ट 5 minutes नाउ, बट तो आपका कोई थॉट इसमें, अगर आपने थोड़ा सा सुना तो भी, हाउ टू ओवरकम वरी। लास्ट वाला पार्टी सुना आप, शायद क्लाइंट के बारे में कुछ बात कर रहे थे। तो इस चैप्टर में ऑथर ने वरी को डिफाइन किया और कुछ तरीके बता रहे थे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो हम लोग अपने अपने चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या और टूल्स टेक्निक्स हैं, चाहे वो माइंडफुलनेस हो, पॉजिटिव साइकोलॉजी हो, एनएलपी हो, या कोई और थेरेपी हो। एक इसमें राइटिंग थेरेपी भी थोड़ा काम कर देती है कि एक्चुअल में हम लिखना शुरू करें, लिख लें कि क्या हो सकता है, क्या हमारे मन में आ रहा है। तो जब हम लिखने लगेंगे तो हमें लगेगा अरे यार इतनी सुपरफिशियल बात में क्या ही लिखूं, कुछ कॉन्क्रीट तो है नहीं इसमें। तो वो भी चीज़ थोड़ा सा हेल्प कर सकती है। और अगेन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। जब सामने चीज़ें आ जाएंगी तब चीज़ें करना ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो हमेशा बेस्ट स्ट्रेटजी है कि प्रिवेंट ही हो जाए तो अच्छा है, वो चीज़ें आए ना, आने पे फिर मुश्किल है थोड़ा। इसीलिए इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से बेटर है डिजास्टर मिटिगेशन की अप्रोच, प्रिवेंशन की अप्रोच। जी, 3-4 minutes लेफ्ट, 2-3 minutes, एनीथिंग एल्स। हाँ, मतलब कितनी सारी बातें याद आती जाती हैं। ये हम ये भी कहते हैं ना, दिस इज वू का वर्ल्ड, वी यू सी है। तो वोलाटाइल है, अनसर्टेन है, एम्बिगस है, कॉम्प्लेक्स है, तो चीज़ें ऐसी होनी ही हैं। इससे अगर हम एक्सेप्टेंस हमारे पास आ जाए कि हाँ चीज़ें हो सकती हैं आगे पीछे, वन थिंग मे बी श्योर, माई रिस्पॉन्स टूवर्ड्स इट, थिंग्स विल गो अप एंड डाउन, होता रहेगा। तो ये ऐसा ही है, वॉलेटाइल है, कॉम्प्लेक्स है, एम्बिगस है, अनसर्टेन है, इट्स ओके। एक और चीज मुझे जब याद, हमने रेंज सॉरी, रेंज में पढ़ा था हमने विकेड वर्ल्ड। विकेड वर्ड इज। आई वाज सेइंग कि हम कोई भी सिचुएशन में ये देख सकते हैं कि व्हाट इज इन माय कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट इन माय कंट्रोल, एंड देन ट्राई टू फोकस ऑन थिंग्स दैट विच आर इन माय कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन माय कंट्रोल। तो वो ये भी 7 हैबिट्स से हमें seven- एक मिल गया। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है और सर्कल ऑफ कंसर्न में क्या है। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा तो कंसर्न अपने आप ही कम हो जाएगा, कंसर्न विच इज काइंड ऑफ वरी, जोन ऑफ वरी। अभी एक तो और इट चीज इज़ मेरे गुड को, कि हम बहुत सारी बुक्स का रिवीजन हमारा होता रहता है, कनेक्ट हो जाती है। हाँ जी सौरभ भाई। कल हम लोग एक बात डिस्कस कर रहे थे कि डिटैच होने के ऊपर, वरी से रिलेटेड, कि जैसे कल क्रिकेट मैच था, हम लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो हमने कहा लोग इतना परेशान हो रहे होंगे, इंडिया हार गई तो हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, राइट? बिकॉज फॉर अस, वन इज वी आर नॉट रिलेटेड टू दैट गेम, वी आर नॉट सो engrossed in it. Second, we see it as just as a game. We are not seeing it any at, as anything else. तो एक तो वो लेवल का डिटैचमेंट हो गया कि वो लोग गेम खेल रहे हैं, तो हारे या जीते, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, एंड हाउ एम आई गोइंग टू बी गेट इम्पैक्टेड वेदर दे विन और लूज। उसी तरह सेकंड लेवल ऑफ डिटैचमेंट होगा शायद अपनी लाइफ में, कि वी ऑल आर आल्सो प्लेइंग अ गेम सॉर्ट ऑफ इन दिस रोल, in this body. So whatever is happening, we just have to perform our best. Results are not in our hand, and तो उस लेवल का डिटैचमेंट होगा तो, और मे बी वरी से हम और दूर होते जाएंगे। एक्चुअली ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस तरह का डिटैचमेंट। मतलब आई थिंक आई वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव नॉट बीन सो मच इंटरेस्टेड इन एनीथिंग लाइक क्रिकेट और समथिंग एल्स। तो अच्छा है। ठीक है जी, इतना ही करते हैं अभी। इसना जी आपका भी मीटिंग है, ऑफिस है, सौरभ भाई का भी होगा शायद।
So let us limit it to 2 p.m. only. It was a great discussion, like always. Sorry for Okay. joining late. I'll join on time tomorrow. Okay, that's all right. Okay, see you tomorrow.